હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે આ વિડીયોમાં જે અમે લેવલ્સ માર્કેટ ઓપન થાય અથવા તો માર્કેટ ક્લોઝ થયા પછી અમારા એફપી ગ્રુપ અથવા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરીએ છીએ એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવીશું. આ વિડીયોમાં આપણે 9th ઓક્ટોબર ફ્રાઈડે નિફ્ટી અને નિફ્ટી બેંકમાં અમે શું લેવલ્સ મૂક્યા હતા અને દિવસ દરમિયાન શું થયું એના ઉપરથી આપણે આ લેવલ્સને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપણે લેવલને સમજીએ એ પહેલા આપણે જરૂરી છે કે અમુક એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મેળવી લઈએ. આ વિડીયોમાં લેંગ્વેજ ગુજરાતી માં હું બોલી રહ્યો છું, પણ ક્યારેક ક્યારેક જરૂરી લાગશે તો ઇંગ્લિશમાં અથવા હિન્દીમાં બી બોલતો રહીશ કે જેથી જે અમારા મેમ્બર્સ કે જરૂરી નથી બધા ગુજરાતી સમજે એ લોકોને બી થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે. સો વી વિલ ટ્રાય ટુ સ્પીક ઇન different languages, Gujarati, Hindi, and English during this video, so people who watch this video can understand little better. So we are talking about 9th October 2020 Friday when market opened and what was the Nifty 50 and Nifty Bank levels that we have given in our group that has been placed here to show and give a basic understanding about our levels. Okay. અચ્છા, આપણે લેવલ્સ તમે આ ઘણીવાર જોયા હશે, તો આપણે કરી દઈએ. પહેલી લાઈન છે આપણે ઇન્ડેક્સ અથવા સ્ટોક વિશે માહિતી છે. લાસ્ટ ક્લોઝ, કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ, આ બંને સરખા હોય તો જનરલી લાસ્ટ ક્લોઝિંગ રિપોર્ટ હોઈ શકે. જુદા છે તો ઓપનિંગ અથવા કરંટ લાઈવ રિપોર્ટ હોઈ શકે. ટાઈપ 5 ટાઈપ છે: પાસ, લાસ્ટ, કરંટ, ક્યુમ્યુલેટિવ અને 50-50. આપણે 50-50 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બીજા વર્ડ છે બુલ ટોપ. બુલ ટોપ બેઝિકલી કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ રેઝિસ્ટન્સ બ્રેક થાય એનો મતલબ કે સમથિંગ ઇઝ હેપનિંગ, વેરી બુલિશ થઈ રહી છે. બરાબર છે. એક ફેરી આ બુલ ટોપ બ્રેક થયા પછી આ બુલ સપોર્ટ ની નીચે જવું જાય તો પાછી ન્યુટ્રલ થઈ જાય. એટલે અગેન સમજવું કે બુલ ટોપ આની ઉપર જાય એનો મતલબ અમે એવું નથી કહેતા કે ઉપર જ જશે. અમે એમ કહીએ છીએ કે બી એલર્ટ, આ ઉપર જવાની પ્રોબેબિલિટી વધી રહી છે. ક્યાં સુધી પ્રોબેબિલિટી વધી રહી છે કે જ્યાં સુધી આ સપોર્ટ એ મેળવે છે, પ્રોફિટ બુકિંગ થાય, પરંતુ આની આજુબાજુ સપોર્ટ કરીને ઉપર જાય, ધેટ મીન્સ એના બુલિશના ચાન્સીસ વધારે છે. અમે બુલટોપ બ્રેક થાય એનો મતલબ એવો નહીં કે ઉપર જ જાય, એ ઉપર જઈને પાછો રેઝિસ્ટન્સ નીચે ક્રિએટ કરીને પાછી નીચે જઈ શકે. એનો મતલબ ફરીથી સમજાવી દઈએ. બુલટોપ, once this breaks there is a higher chances to go up with the support above this. So this is a bullish support. Okay. If once it breaks and then fall backs below this, it will become neutral. So we need to understand કે આ બુલ ટોપ અને બુલ સપોર્ટ આપણે કઈ રીતે રીડ કરીએ છીએ. સેમ થિંગ બેરિશ રેઝિસ્ટન્સ, બેરિશ બોટમ. If this breaks, that does not means bearish. There should be resistance created below this, then it is little bearish, but then it has to break this level to confirm bearishness. Means वो completely initiate हुआ है bearish, means signal दिया है according to the level. ठीक है. जरूरत नहीं है कि ये बॉटम मीन्स ब्रेक हुआ तो नीचे ही जाएगी. यहाँ पे सपोर्ट फिर से लेकर ये फिर से ब्रेक करके ऊपर न्यूट्रल बन सकती है और फिर इसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर से बुलिश हो सकती है. ठीक है. दीज आर द लेवल्स. सो यू नीड टू चेंज योर सिचुएशन और अंडरस्टैंडिंग मीन्स डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. यू हैव टू मेक व्हाट यू शुड डू, राइट. अगर बेरिश रेजिस्टेंस है तो उसके नीचे जा रहा है तो यू कैन नॉट गो एंड बाय, राइट. आप जैसे डे ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, बेरिशनेस है तो आप सेल फर्स्ट करते हो, बुलिशनेस है तो आप बाय फर्स्ट करते हो. ठीक है ना. सो दीज आर द लेवल्स. ये लेवल्स में P प्लस P माइनस है, तो क्या चीज है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. आई विल टेल यू इन जस्ट अ मोमेंट. ओके. We are also giving a bare bottom, we are also giving a weak below, strong above. Basically more, it has nothing to do with this thing, it has more like sentiment, right. कि अगर इसके नीचे 805 के नीचे भी रेजिस्टेंस बनता है तो वीक हो रही है, इट्स मोर चांसेस के ये 766 को ब्रेक शायद कर सके. सो इट्स मोर सेंटिमेंट. अगर ये स्ट्रांग हो रही है 11 तो इट्स पॉसिबल इट विल गो अप अगेन. इसके ऊपर 850, उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बुलिश है, उसको सिग्नल इसके ऊपर गया तो वो चांसेस बढ़ रहा है. ठीक है. तो दीज आर द लेवल्स. वी ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स, so it's not necessary every levels has its own importance. Okay. So you need to understand we are giving churning levels, you know,
what we should, that is a forecast model. This is based on historical, we assume, right, and give some kind of ideas that okay, this is what we feel, these are the bands. In other levels we forecast, okay, you should churn in between this and that. So you need to understand there are little difference variance. Okay, so now in these levels we have also provided P plus, P minus. um, Also we have provided consolidation range. These are the boundaries, lower boundaries, upper boundaries. Okay, within those boundary you have those levels, so you will have more understanding. अगर ये upper boundary देखते हो तो समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर वॉल्यूम करके ऑलरेडी 899 के ऊपर है, अगर ऊपर जाती है तो मोर स्ट्रेंथ आ रही है, और इसके नीचे गई और इसको नीचे वॉल्यूम हो रहा है, मोर वीकनेस आ रही है. ठीक है, so basically you understand those words right now. What is pivot shift? Pivot shift means ये ओपन हुआ है, अभी पाइवट है 11,829, राइट, मींस न्यूट्रल पॉइंट. अगर दिन ड्यूरिंग द डे एकदम बुलिश हो जाती है, तो अगर अभी लेट्स से 11,915 के ऊपर जाती है, तो अभी क्या करेंगे आप? सपोर्ट है, लेकिन अभी क्या करूं? आपको क्वेश्चन आएगा, राइट. यू कैन रिकैलकुलेट ऑल दिस लेवल्स अगेन यूजिंग दिस एज अ पाइवट. ठीक है, अभी 915 पे है 11,000, तो ये पाइवट की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी ये पाइवट ले लो आप, और आप P प्लस 70, सो इसके अंदर 70.4 अगर ऐड किया तो 11,955 करीब बनाएगा, तो वो अपना नया बुल टॉप आ गया. समझ में आया? सो नाउ यू नो 915 अगर अभी 955 भी ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा. अच्छा, व्हाट इज बुल सपोर्ट? 11,884 plus 23 comes out 11,907, right? So that's another bullish support. So bullish हुआ, पाइवट शिफ्ट किया, पाइवट शिफ्ट एवरी 55. ठीक है, ये करंट था, उसके अंदर 55 ऐड किया, नया आया, नीचे गया, इसके सब्सट्रैक्ट किया, ये आया, उसके ऐड और 55 करो, नेक्स्ट आएगा. ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट अगेन न्यू लेवल्स बेस्ड ऑन पाइवट शिफ्ट. पाइवट शिफ्ट का जो इंटरवल है यहाँ पे दिया है, सेम थिंग 167, ये बैंक में पाइवट शिफ्ट है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पाइवट शिफ्ट, राइट. यू कैलकुलेट, अगर आपका जो मूवमेंट इसके अंदर है तो you don't need to calculate. Once it goes outside, you calculate based on pivot shift, right? So these are the levels. Consolidation is two boundaries. ठीक है, ये very important, two boundaries है. And weak, below, and strong above, it's a sentiment, and these are the bands, pricing bands, and pivot is neutral. Okay, so I understand that you have a more understanding about our levels. ठीक है, अभी ये 9 अक्टूबर जो हुआ था उस पे हमने उससे पहले 8 अक्टूबर में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था. तो अगेन व्हाट्सएप ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं. एफबी पेज ग्रुप में भी हम रख रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हम थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं. तो 8 अक्टूबर क्लोजिंग में हमने बोला था कि 11,745, 11,924, पाइवट 11,848, और 1187, 11,900 के ऊपर आप बेरिश नहीं रह सकते. बेरिश नहीं रह सकते मीन्स आप बुलिश और न्यूट्रल रह सकते हैं. ठीक है ना. सेम थिंग बैंक निफ्टी फ्रेश बाय ओनली अबाउट 23,353 विद सपोर्ट अबाउट 23,321. ठीक है, लेट्स चेक व्हाट हैपेंड टू निफ्टी. निफ्टी खुली 11,852 पे, पहले ऊपर गई, बाद में नीचे गई, लो बना है 805, करीबन 10 बजे कुछ आरबीआई पॉलिसी आई और एकदम से ऊपर चला गया. ठीक है, लेट्स सी 880 पे क्या आपका सेंटीमेंट रहेगा, राइट. आप बोल रहे हो कि बुलिश है, एकदम से नीचे आ गया, सो डेफिनेटली नीचे आ गया, यू डोंट नो. लेकिन अगर 852 के नीचे आ गया तो फिर देन अगर आपने लिया है तो आपको वरी करना पड़ेगा, राइट, कि भाई अभी क्या हो रहा है. फिर 11,834 के नीचे आ गया, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर द लेवल्स, राइट. 80 तक गया लेकिन ये टूटा, फिर ये टूटा, आप क्या कर रहे हैं? तो देन यू हैव नाउ दिस लेवल एंड नाउ दिस लेवल, राइट. क्या हुआ? 11,820 तक आया, फिर वहां से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ देख लो.
सो 11 लो बनाया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया नहीं, हमारा जो बुल सपोर्ट था वही से ही उसने वो कर दिया, देख लो। I think we should take the different color. It should be green. ठीक है, you can clearly see that हमारा जो 48 जो था लेवल, वहीं पे उसने सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। अगेन यही बात हमने बताई थी 11,848, तब तो हमको पता नहीं था ना, लेकिन अवर सॉफ्टवेयर प्रिडिक्टेड समथिंग। ठीक है, अगेन ये सॉफ्टवेयर जो हिस्टोरिकल होता है थोड़ा कैलकुलेशन करके लेवल्स रखता है, जरूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंगली हो, लेकिन आप अंदाजा मीन्स आपको थोड़ा आइडिया आ सकता है लेवल्स को आप यूज करके, और अकॉर्डिंगली द राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। वो तो आपको पता है, हमारा लेवल देख के क्या होता है दिन में, और फिर आपको ट्रस्ट आ सकता है कि नहीं ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस है, और अगर लेवल अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसके आजू बाजू आप ट्रेडिंग अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और आप मोर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग। सो बेसिकली 11,505 से करके ऊपर चला गया 852, उसके नीचे फिर बहुत नहीं आया और एकदम से 899 ब्रेक हो गया, और करीबन पहले उसने 935 11,935 के आजू बाजू उसने हाई बनाया। डेफिनेटली अगर उस 899 के ऊपर चला गया देन इट विल बी अ पाइवट शिफ्ट। ठीक है, तो नया आपने बुल टॉप लिया 11,955 कैसे आया, तो उसके अंदर आपने 70 ऐड कर दिए तो नया बुल टॉप आ गया, तो आपको दूसरा एक लेवल मिल गया कि भाई उसके ऊपर जाती है तो और चलेगा, लेकिन उसके पहले आपको ये भी लेवल जो आ गया कंसोलिडेशन 11,935 के आ गया, लेकिन अगर वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है तो आपको ये देखना है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ, तो कि नहीं इतना नहीं हुआ, यहाँ से फिर से गिरा, तो 11,955 का तो हमने समझा कि वो बुल टॉप नया है, नए नया पाइवट से हमने लिया, लेकिन व्हाट अबाउट बुलिश सपोर्ट, लेट्स कैलकुलेट दैट। सो 11,884 के अंदर 23 ऐड किया तो करीबन 11,907 आया, वो हमारा बुल सपोर्ट मीन 90 के 11,907 के ऊपर, तो वो हॉट ही है। तो लेट्स सी वो कहाँ पे है, आई एम गोइंग टू चेक अगेन इन अवर थिंग। तो करीबन ये यहाँ पे आया शायद, ये 8 9, ठीक है, तो यू कैन सी राइट, ये 7 कैसे आया, 11,884 हमारा दूसरा पाइवट शिफ्ट में पाइवट था, उसमें 23 ऐड किया तो करीबन आया 907 के आया। ठीक है ना, वो 884 प्लस 23 तो 907 हुआ ना, तो यू कैन सी देयर इज अ सपोर्ट, सेम थिंग सपोर्ट you can see here too, you see, so these are the supports clearly। ठीक है, तो अभी 12 अक्टूबर को देखेंगे वो 11,955 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर वो नहीं जाता है तो डेफिनेटली समथिंग, आई एम न्यूट्रल, आई एम नॉट बुलिश। 955 के ऊपर तो जाना ही है, क्योंकि ये जो 9 अक्टूबर पे 8 अक्टूबर के क्लोजिंग से जो 9 अक्टूबर में हुआ था, तो 8 अक्टूबर से सजेस्ट होता है कि नेक्स्ट बुल टॉप 955 है। अगर इतना ऊपर चला गया तो उसको डेफिनेटली 11,955 के ऊपर जाके वॉल्यूम करना पड़ेगा। अगर वो 955 के नीचे आ जाती, नीचे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और 907 के नीचे जाती है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ क्वेश्चन इन माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन विद द निफ्टी। I definitely won't be bullish if it falls below 11,907. Clear. So now let's talk about Nifty Bank. What happened to Nifty Bank? Sorry, I have to erase all this thing. So Nifty Bank वो ओपन हुआ 23,312 पे ओपन हुआ। ठीक है, हमारा लेवल क्या था, तो हमने बोला था कि उसका कंसोलिडेशन क्या है 23,303, उसके नीचे गया। ठीक है, तो नीचे गया तो कहां तक गया, 23,132.45 तक। ठीक है,
सो लेट्स अगेन एनालाइज अवर थिंग। तो उसमें क्लियर लिखा था बेयर बॉटम 23 20, तो ये ब्रेक नहीं हुआ। वीक बिलो 23,157, लो बनाया 23,132, ठीक है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा वीक हुआ, लेकिन ज्यादा तक वो रहा नहीं इसके नीचे। यू कैन सी दैट 162 लुक। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। अगर वॉल्यूम होता, रेजिस्टेंस वीक बिलो है, इसके नीचे रेजिस्टेंस अगर क्रिएट होगा तो निफ्टी बैंक वीक ही थी, ठीक है, लेकिन वहां सपोर्ट हुआ, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जनरली क्या होता है, बेस शिफ्ट होता है ना, तो विद इन 15-20 मिनट्स में बेस शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखो ये बेस शिफ्ट एवरी 15-20 मिनट में ऊपर जा रहा है। अगर कंसोलिडेशन होता है तो विद इन 15-20-30 मिनट, अगर वॉल्यूम बनाना है और नीचे जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, वो नहीं है। एनीवेज, हमारा जो वीक बिलो 20 थे वहां से उसने सपोर्ट बनाया और वहां से वो ऊपर हो गया। अभी हमने जो फोरकास्ट किया था 8 अक्टूबर क्लोजिंग में बोला था कि फ्रेश बाय ओनली अबाउट 23,353, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, हमने कहीं पे देखा है, ये देखो स्क्रीन पे कौन सा लेवल आता है, 23,352। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 368, ठीक है। वहां पे उसने ब्रेक किया, ठीक है। वो ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, नीचे कहाँ तक गया, तो 303-305, और कितना टाइम टिका, 4-5 मिनट, ठीक है। और फिर चला गया ऊपर, ठीक है। तो 10-13, ओके, और फिर 10-19, 5-6 मिनट्स तक ही वहां रहा और फिर चला गया। और जो हमने बोला था फ्रेश बाय ओनली अबाउट 20 विद सपोर्ट अबाउ, तो यहाँ पे हुआ। और फिर कहाँ गया निफ्टी बैंक, काफी ऊपर तक चला गया, ठीक है, 23,904। और हमारा जो बुल टॉप था 874 का, ठीक है। बुल सपोर्ट 465 का था। तो एक बार ऊपर गया, फिर 465 ब्रेक किया है, नहीं किया है शायद, लेट्स ट्राई सी। तो यहाँ से ऊपर, अभी यहाँ पे बुल टॉप नहीं किया, लेकिन 465 के ऊपर चला गया। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ था, 423-490 के ऊपर स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये। तो यहाँ से सीधा ऊपर उसने 350, देखो ये जो हमने बोला फ्रेश बाय 23,350, उसके बाद उसने सीधा ऊपर छलांग ले और 23,490 के ऊपर चल गया। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि अभी स्ट्रांग होगी। फिर उसने नीचे मुड़ के नहीं देखा और ऊपर ही चली गई। और फिर उसने लास्ट में उसने वो हमारा जो लेवल था वो ब्रेक किया और उसके ऊपर चली गई, ठीक है। फिर 465 नहीं आया, तो ये डेफिनेटली स्ट्रांग है निफ्टी। अगेन अभी नीचे उसको आना है, तो उसको अभी उसका नया पाइवट कहाँ है, तो 23,470, लेकिन काफी ऊपर चली गई है, तो यू कैन ऐड 2 मोर। सो 167 प्लस 167, सो 2 एंड देन 35, so it's around 335, right? So 23,335, so करीबन 23,805, 2 पाइवट ऊपर चला गया है। अभी देखो 23,800 के ऊपर उसने सपोर्ट बनाया, तो यस उसने बनाया है, ठीक है। तो अभी पाइवट कौन सा है, तो क्या 23,805, तो अभी उसको बुलिश होना है, ठीक है। तो 23,800 अभी देखो, तो अभी उसका 900 962, उसको 23,970 ऊपर उसको सपोर्ट बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर 23,800 नया है, तो अंदर नया बुल टॉप कौन सा आ जाएगा अकॉर्डिंगली दिस लेवल, तो बोले 24,370, ठीक है ना, 24,370 वो नया ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। लेकिन हमारा जो 9 अक्टूबर आ गया है, तो डेफिनेटली 12 अक्टूबर का डिफरेंट लेवल होगा। हमारे एफपी पेज पे शायद अवेलेबल होगा, और नहीं अवेलेबल, आई वुड रेकमेंड यू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। हम यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में रखते हैं, एफपी ग्रुप में हमने रखे कि कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं एफपी से वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आई थिंक दिस इज आवर लेवल्स। आई होप you may have liked it, or definitely you may have understood these levels, and I hope you will take advantage of those levels. Thank you
for watching our video.